Hello everyone, welcome to Pharmacy. Here I post videos on pharmacy related subjects in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today we will start colloidal dispersion, and it is a part 1 where we will discuss the introduction, the classification and general characteristics of various types of dispersed system, and then colloidal particle shapes. It is basically a chapter from Physical Pharmaceutics Part 2 of B.Pharm 4th Sem. So let's begin the slide. This is the introduction. So colloid जो word है, जो term है, it comes from a Greek word कोला, एंड बेसिकली कोलॉइड्स जो होते हैं उसे कोलॉइडल सिस्टम भी बोला जाता है, ऑल्सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी बोला जाता है, सॉल्स सॉल्स भी इसे कहा जाता है. इट इज़ अ हेट्रोजीनियस बाइफेजिक फेज, ऑल्सो कहीं कहीं पर इसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी बोला जाता है. साइज़ रेंज की अगर हम बात करें तो अबव 1 नैनोमीटर की इसकी साइज़ होती है, मैक्स टू मैक्स 100 नैनोमीटर्स तक का इसका साइज़ रेंज आता है. ओके, फर्दर डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द कोलॉइड्स लिटिल बिट मोर. Colloids, as I said, it is also known as heterogeneous biphasic system. Also somewhere it is known as heterogeneous solution. So why? Basically the colloids have the characteristic which is intermediate to a solution and also to a biphasic system. वो ना तो completely एक solution होता है, ना तो ये completely एक biphasic system होता है like suspension or emulsion. It carries some characteristic of a true solution, also some characteristic of some biphasic systems. So as we know, solution क्या होते हैं? True solutions. There the solvent is completely miscible with the solute. Means solute जो है वो solvent में dissolve हो जाता है. And that is in monophase, means no separate layers of solvent or solution. दोनों चीज़ जो है वो आपस में dissolved है and separate layers आपको देखने को नहीं मिल रहा है. Whereas in suspension emulsions, that is various types of biphasic system, you will see that solute is not dissolved in the solvent, as well as solute and solvent contain separate layers. वो अलग रहते हैं, solute solvent से अलग होकर रहते हैं and ये dissolve नहीं होते आपस में. So now comparing with the colloidal system, basically colloidal system और colloidal solutions में it carries the characteristics similar to solution that here in colloids the solute is completely mixed with the solution, not dissolve. मैं dissolve की बात नहीं कर रही हूँ, मैं mix की बात कर रही हूँ. मीन्स कंप्लीटली स्प्रेडेबल रहता है, सिमिलर टू मोनोफेज. मोनोफेज में जैसे सेपरेटेड नहीं रहता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स लाइक इन सॉल्यूशन, लाइक दैट कोलॉइड्स में भी सॉल्यूट्स एंड जो सॉल्वेंट होते हैं वो आपस में मिक्सड अप रहते हैं. ओके, नाउ कंपेयरिंग विद द सस्पेंशन एंड इमल्शन, एज आई सेड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में डिजॉल्व नहीं होते हैं इन सस्पेंशन एंड इमल्शन. सिमिलर टू दैट कोलॉइड सिस्टम में भी आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में डिजॉल्व नहीं होते. सो colloidal system basically summarized अगर हम करें तो a system where solute is not soluble in the solvent but solute is completely spreadable or miscible with the solvent, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको separate solute and solvents के लेयर देखने को नहीं मिलेंगे. The reason for the complete spreadability is the zigzag movement or Brownian motion within the particles. colloid particles की जो साइज रेंज है उस साइज रेंज की वजह से वो जो है completely solvent के अंदर मिक्सअप होते रहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर, अगर आप देखोगे विंड जब चलता है, हवा जब चलता है तो डस्ट जो हल्के होते हैं वो ऑलवेज नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट वगैरह जो वो उड़ते रहते हैं, वो सेटल नहीं रहते हैं, वो एयर के साथ डिजॉल्व नहीं है, बट वो एयर में ऑलवेज आपका मोशन में रहता है. वेरएज जो स्टोन हो गए, छोटे छोटे जो आपके पत्थर्स हो गए, रॉक्स हो गए, वो नीचे सेटल्ड रहते हैं बिकॉज दे आर हैवी पार्टिकल्स. तो जो मेन मैकेनिज्म है दैट इज ड्यू टू द साइज रेंज दैट इट इज स्प्रेडेबल इन द सॉल्वेंट. वो मोशन में रहते हैं विद इन द सॉल्वेंट. सो एज आई सेड कि इसमें जो है दो फेजेस है. सो डिस्पर्स्ड फेज एक है दैट इज द सॉल्यूट एंड द कंटिन्यूअस फेज दैट इज द सॉल्वेंट. Okay, now the classification. Let us know what are the various types of dispersed system. Solute and solvent दो चीज़ जहाँ पे भी मिक्स हो रहा है that is a dispersed system. जहाँ पे भी दो चीज़ है, अगर सिर्फ एक ही चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, देन इट इज़ नॉट अ डिस्पर्स सिस्टम. जहाँ पे भी दो चीज़ है, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, इट इज़ अ डिस्पर्स सिस्टम. सो बेसिकली बेस्ड ऑन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम 3 कैटेगरीज में आपके सिस्टम डिवाइड किए जाते हैं. मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन्स, कोलॉइडल डिस्पर्सन्स एंड कोस डिस्पर्सन. मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन्स सबसे लेस साइज इनमें सॉल्यूट्स के देखे जाते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर्स
एंड कोलॉइडल डिस्पर्सन जो है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर्स तक इसके रेंज जा सकते हैं. कोज डिस्पर्सन्स इफ द पार्टिकल साइज इज मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर देन ये कोज डिस्पर्सन्स में जाते हैं. सब डिस्पर्सन सिस्टम दैट इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन. मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन्स इट इज इन केमिकल और इन केमिस्ट्री इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. इसे ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि ट्रू सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में डिजॉल्व रहते हैं, सिमिलर इसमें है. ये भी आप कह सकते हो इट इज़ एक्चुअली अ ट्रू सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट डिजॉल्व हो जा रहा है सॉल्यूशन में. सो बेस्ड ऑन दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिकुलर डिस्पर्सन्स इज, ये आपके कोई भी एडवांस माइक्रोस्कोप में भी अगर आप देखना चाहो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सेपरेटेड है कि नहीं, यू विल नॉट एबल टू सी दैट विल बी इनविजिबल. द पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स विल बी इनविजिबल. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर्स से ये ईजिली पास कर सकता है. नॉर्मली अगर आप वाटर को जैसे पास कराओगे दोनों से पास हो जाएंगे, लाइक दैट ये आपका वन काइंड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन जो कि पास हो जाएंगे. द मॉलिक्यूलर डिस्पर्शंस ओके. एंड ये सेटल नहीं होंगे बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशंस में कभी आप देखोगे नहीं. जैसे अगर आपने चीनी पानी में डिजॉल्व कर लिया है तो आपको ऐसा चीनी नीचे सेटल्ड आपको नहीं दिखेगा. सो नो सॉल्यूट सेटल डाउन्स. रैपिड डिफ्यूज़न होगा, कहीं से भी आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस में आप देते हो तो वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे. एग्जाम्पल लाइक आप ग्लूकोज को देख लीजिए, ग्लूकोज विथ वाटर और आयंस विथ वाटर अगर आप सोल्यूशंस बनाते हो तो दिस आर मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द कोलॉइडल डिस्पर्सन्स, द चैप्टर जिस पर बेस्ड है कोलॉइडल डिस्पर्सन्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होते हैं. एज आई सेड ये आपके स्प्रेडेबल रहते हैं. तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में अगर आप देखना चाहोगे तो आपको कुछ सेपरेट नहीं नजर आएगा, बट येस इन एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स नजर आएंगे विद इन द सॉल्वेंट. इट विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि बहुत फाइन पोरस होते हैं वहाँ पे उनके पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, तो पैसेज में प्रॉब्लम आएंगी. एंड सेटल डाउन की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स नॉर्मली ये सेटल नहीं होंगे बिकॉज इन बॉम्बार्डमेंट मोशन इसमें जिगजैग मोशन इसमें रहता है, बट सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत हाई पावर में जब वो रोटेट करेगा इट विल एबल टू सेंट्रीफ्यूगेशन विल एबल टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द सॉल्वेंट. It can also diffuse, but due to the larger particle size, diffusion थोड़ा slow हो जाएगा. Still diffusion is possible. Like example, you can see silver solutions, silver colloidal solutions. Sols, as I said, SOL as sols means colloidal solutions को बोला जाता है. As well as जो polymer या natural हो synthetic हो polymers के solutions भी इस तरह के colloidal dispersants में रहते हैं. एंड द थर्ड वन इज कोर्स डिस्पर्सन. कोर्स डिस्पर्सन्स में आपके ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी इजीली सस्पेंशन इमल्शन को आप ले करके ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड में देखिए आपको क्लियरली विजिबल होंगे सॉल्यूट्स पार्टिकल विद इन द सॉल्वेंट्स. ये ना तो फिल्टर पेपर से पास होंगे ना सेमी परमेबल. आपने बहुत बार प्रेसिपिटेशंस वगैरह अगर किया होगा तो प्रेसिपिटेट्स जो है ईजिली आपके फिल्टर पेपर से आपका सेपरेट हो जाता है. सो आई विल नॉट टॉक अबाउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज वो बहुत फाइन होता है, फिल्टर पेपर से ही ईजिली सेपरेट हो जाएंगे. एंड सिंस यहाँ पे सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स का उतना ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी नहीं है, इट विल बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल सेटल डाउन आफ्टर सर्टेन टाइम. इट विल नॉट डिफ्यूज एट ऑल बिकॉज पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जा रहे हैं. एंड एग्जाम्पल्स एज यू ऑल नो सस्पेंशन इमल्शंस ऑल्सो RBCs आर अ टाइप ऑफ कोर्स डिस्पर्सन्स. Okay, let's have a summarization of the differences. First, talking about the particle size. Maybe you recognize molecular dispersants 1 nanometer से below, colloidal dispersants more than 1 nanometer but less than 0.5 micrometer, coarse dispersants are more than 0.5 micrometer. Appearance, as the particles are dissolved in a kind of dissolved form, molecular dispersants में clear transparency आपको नजर आएगा. जैसे कि सुगर अगर वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है तो आपको वो क्लीन ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड नजर आता है. colloidal dispersants सिंस यहाँ पे सॉल्यूट्स जो है वो ऑलवेज बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, स्प्रेडेबल होकर रह रहा है, तो इट विल गिव अ घुला घुला सा जो लुक होता है, एक ऑपेलेसेंस या क्लाउडी टाइप ऑफ टेक्सचर या अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा. कोर्स डिस्पर्सन्स में आप मिल्क को देख लो, मिल्क इज़ अ नेचुरल इमल्शंस, वो आपके कम्प्लीटली ओपैक होते हैं, वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है. सो लाइक दैट. विजिबिलिटी, मॉलिकुलर डिस्पर्सन्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी पार्टिकल्स सॉल्यूट विजिबल नहीं होंगे. कोलॉइडल डिस्पर्सन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एडवांस है उसमें विजिबल होंगे बट नॉट इन ऑर्डिनरी. कोर्स डिस्पर्सन्स कैन बी विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप ऑल्सो. सेपरेशन, मॉलिकुलर डिस्पर्शंस में पार्टिकल्स जो है वो किसी से भी सेपरेट नहीं होंगे, नाइदर बाय फिल्टर पेपर नॉट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इन कोलॉइडल डिस्पर्संस बाय फिल्टर पेपर इट विल पास बट नॉट इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कोर्स डिस्पर्संस में बोथ इफ यू यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर, कोर्स डिस्पर्सन में पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे. डिफ्यूजन की बात करें, मॉलिकुलर डिस्पर्संस कैन डिफ्यूज ईजिली. कोलॉइडल डिस्पर्संस
can diffuse but in a slow rate. Porous dispersion cannot diffuse. सेडिमेंटेशन में मॉलिकुलर डिस्पर्सन में पार्टिकल्स सेडिमेंट होंगे ही नहीं, कोलॉइडल डिस्पर्सन में सेडिमेंट होंगे, बट if you go for centrifugation, otherwise no. Post dispersons में normally and under the effect of gravity it will settle. Shape, the last topic of today's video is shape of the colloids. So basically ये 5 to 6 shapes में आते हैं, and shapes के बारे में study क्यों करते हैं, because shapes indirectly affect the surface area. shapes के according surface area होता है किसी भी particles का, and जितना particles का surface area आपका available होगा उतना ही solute and solvent के बीच में force of attraction आएगा. जितना area cover होगा, touch होगा of the solute with the solvent, force of attraction आएगा, and it will basically affect the form or the type of solution or dispersed system it creates. So सबसे common जो होता है वो होता है sphere and globular shapes, as you can see in the picture. Second categories में some short rod like छोटे छोटे rod के जैसे, या फिर prolate ellipsoids. Prolate ellipsoids are basically rugby ball shaped. आप लोगों ने rugby ball देखा है, like egg या oval shape, लेकिन जो corners होते हैं वो little bit pointed होते हैं, similar to rugby ball. उस तरह के shapes भी आपको देखने को मिलते हैं. Third category is oblate ellipsoids. Oblate ellipsoids basically round flat breads, अगर आप लोगों ने खाया pita breads, like उस तरह के shapes basically disc shape में आपके होते हैं, otherwise flakes में भी होते हैं. In chemical in various chemicals आप लोगों ने देखा होगा, like sodium etc. sodium ammonium hydroxide, sodium hydroxide के flakes आते हैं, तो like that चूड़ा वगैरह जैसे आप कह सकते हो, like that shapes. Okay, long rod और thread like, धागा के जैसा या लंबे लंबे रॉड लाइक शेप्स, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हो, वैसे भी कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन. एंड देन लूजली कॉइल्ड थ्रेड्स, एज यू कैन सी इन द इमेज, धागा के जैसे है, थ्रेड्स के जैसे हैं, बट राउंड कॉइल शेप्स है. मॉर्टिन्स के जैसे कॉइल शेप में रहेंगे, बट थ्रेड लाइक टेक्सचर के साथ. ओके, एंड द लास्ट shapes which has been observed, last category of the shapes are branched threads. धागा के जैसा लेकिन उसमें branches निकले हुए रहेंगे, like tree branches, उस तरीके के आपके shapes भी देखने को मिलते हैं. So which are the properties basically affected by the colloidal shapes are the four properties mainly. Flowability, जितना राउंड जितना spherical होगा उतना ही वो easily flow करेगा. Second is sedimentation, the more heavy and solid the shape is, it will settle down more easily. For example, if you consider a round or globular shape with a branched thread like shape, obviously जो branched thread like shape है वो easily float कर पाएगा in comparison to the round globular shape of a colloid. Osmotic pressure पे भी effect होता है, as the surface area is affected by the shape, and overall properties में changes आएंगे, तो obviously it will affect the pharmacological effect that is produced by the particular drug, colloidal shaped drug or colloidal particle or colloidal dispersed system of the drug. Today's video is ended. For more videos you must go and visit my channel, and next video will the part 2 will contain the types of colloids. Today we discuss the types of dispersed systems. All the dispersed system हमने discuss किया. next में types of colloids हम discuss करेंगे based on the interaction between dispersed phase and the. Have found my video useful, don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thank you and bye bye.